Hello, my name is Ganesh and welcome back to my YouTube channel. So it is another session for IELTS writing task number 2. So in this video we are going to discuss the discussion essay. So we have to discuss both the views. The question will be about discuss both the views. So we have to discuss in one paragraph one view, and in the second paragraph we have to discuss another view. So the topic of the essay will be single gender schools. So the main or broad topic will be about the education or the gender equality. So this is the topic. So my name is Ganesh, as you all know. So in this session we are going to discuss about the question, what do you mean by the question and everything, planning your answer, common mistakes, and some FAQs at the end. So there are some top results. Some of the students I have taught in the past and currently are in under my mentorship. So this is Vineet, and he scored 6.5 band. There is another student who scored 7.5 band, and she is from IIT Indore. And another student Chetan who scored 7 band, and one of my student also scored 8 band in IELTS, so 9 band in reading, listening, and 7.5 and 7 band in other two section. So if you want to join my mentorship program, you have to do you can directly go to my website. There is a link on the on your description you will find. So there are a lot of study material I have provided. There are a lot of things you can download. So download IELTS task number 2 for 7 band. It will cost you less than a movie ticket price. Just download it, will definitely have a great benefit in your study. अगर आपको नहीं करना है तो आप एक IELTS बिग बुक है, अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड आइल्स बिग बुक, यू कैन डाउनलोड इट. सो उसके साथ मेरे फ्री सेशन या फिर मेरे जो डाउट्स क्लियरिंग सेशन है वो मिलेंगे आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. So these are my results. So let's jump into the topic. So what is the aim of the session? What is the blueprint of the session? So we are going to discuss some of the key things. First of all, we will understand the question and plan essays and structure, how you should plan and how you should write a great essay. So we will do that. So firstly, the paraphrase is very important to write a great essay. So we discuss about how to do paraphrase, use some linking words, and at the last, how to avoid some mistakes. So this is the 5 ways to improve your band. So the question is, some people think that the student in a single sex school perform better academically. So the first argument or first viewpoint is a single sex school, so single gender schools is a better in academics. दूसरा जो point है, दूसरा viewpoint है, it is a mixed school. Their children are better at social skills for the adult life. So in the long term, the mixed school is very important to perform a communication or social skills. So these are the two viewpoints. So the question is discussion of both the views, and and is a very important word here. So and you have to discuss your own opinion. So you should give your own opinion. It is a main focus of the essays, and you should also discuss both the views. So in this paragraph, if you write, so you have to biased. Your views should be biased, and you should lean to one of the uh, point. You can lean to the single sex education is a good, or you should lean to the mixed school are good. So it is very important. So the understanding is the question. You will understand, as I said, this is the question, and I'm sure all of you have read the question. Now identify each part. So let's identify the first part in which the single sex school have given the importance. ठीक है ना, सिंगल सेक्स स्कूल के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखा है, और जो कीवर्ड है या जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, इट इज अ सिंगल सेक्स स्कूल. सिंगल सेक्स स्कूल इज द कीवर्ड, एकेडमिक इज अ कीवर्ड, और दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ पे मिक्स स्कूल इज अ कीवर्ड. एंड उसके बाद एक सेकेंड, ठीक है ना, ये कीवर्ड्स हैं. उसके बाद बेटर
social skill is a keyword. So these are the four main keywords. उसके behalf में आपका जो essay होगा वो होगा. So let's decide your opinion. Let's decide कि आपको किस पे लिखना पड़ेगा. सबसे पहले मैं काफ़ी लोगों को बोलूँगा कि आप पैराफ्रेज करो, तो पैराफ्रेज में आप डिसाइड कर लो कि आपको एक तरीके से अपने आप को एक पॉइंट या स्टेटमेंट पे लीन होगा. तो मेरा मानना है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो लीन होंगे मिक्स्ड स्कूल इज अ बेनिफिट. ठीक है ना, क्योंकि मिक्स स्कूल काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो मिक्स स्कूल वो लीन होंगे एंड इट इज़ अ ग्रेट थिंग. ठीक है ना, मिक्स स्कूल पे वो लीन होंगे, तो आपको भी लीन होना पड़ेगा मिक्स स्कूल पे. मैं भी लीन हो रहा हूँ मिक्स स्कूल पे, तो जो ऐसे होगा इट विल बी लीन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ मिक्स स्कूल. मेरा ओपिनियन ही रहेगा. सो द पैराग्राफ स्ट्रक्चर होगा, 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर होगा. फर्स्ट पैराग्राफ होगा आपका इंट्रोडक्शन और पैराफ्रेज. सेकंड पैराग्राफ होगा आपका मेन आइडिया ऑफ फर्स्ट एंड पैराग्राफ. सेकंड होगा आपका मेन आइडिया सेकंड, और उसके बाद कंक्लूजन होगा. तो आपको मेन आइडिया, आपको मान लीजिए आपने लीन हुआ मिक्स स्कूल पे. ठीक है ना, आपने आपने मिक्स स्कूल पे लीन हो गया. आप बोल रहे हो कि मेन स्कूल इज अ वेरी गुड थिंग एंड एक्स वाई जेड. सो आपको एक पैराग्राफ मिक्स स्कूल पे लिखना पड़ेगा और दूसरा पैराग्राफ आपको सिंगल सेक्स स्कूल्स पे लिखना पड़ेगा. ठीक है ना, सिंगल सेक्स स्कूल पे. और कंक्लूजन में आपको बताना पड़ेगा कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या, और वो ऊपर से सम अप करना पड़ेगा. सो जो हमारा पैराग्राफ फर्स्ट होगा उसमें हमको बताना पड़ेगा बेनिफिट ऑफ मिक्स स्कूल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द बेनिफिट ऑफ मिक्स स्कूल. तो आप बेनिफिट कैसे लिखेंगे? जो भी पैराग्राफ होता है उसमें आप दो तरीके से लिखेंगे. आप स्टार्ट करोगे लाइन अपने आइडिया से. ठीक है ना, सो अपने आइडिया से स्टार्ट करोगे, फिर वो आइडिया को एक्सप्लेन करोगे. ठीक है ना, वो एक्सप्लेन आप अपनी किसी भी रिपोर्ट से एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हो, और कोई सिनेरियो देके एक्सप्लेन कर सकते हो. तो देयर आर वेरियस वेज यू कैन एक्सप्लेन. तो मेरा आइडिया है, मैं फर्स्ट पैराग्राफ में आइडिया लिखूंगा बेनिफिट ऑफ मिक्स स्कूल में कि देयर इज अ कंप्रेसिव लर्निंग इन्वायरमेंट. कंप्रेसिव लर्निंग इन्वायरमेंट मीन्स that all the genders are taught together, so it's a real world scenario. So it is a great or similar environment and it is a benefit to the children or the student. और मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा विद अदर जेंडर्स, सो इट इज इजियर टू सॉल्व और इट इज इजियर टू कम्युनिकेट विद द अपोजिट जेंडर. ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा बेनिफिट. मैं सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखूंगा? ये सेकंड पैराग्राफ का आइडियाज है, ये फर्स्ट पैराग्राफ का आइडियाज. ठीक है ना, तो सेकंड पैराग्राफ में लिखूंगा बेनिफिट ऑफ सिंगल स्कूल. बेनिफिट में क्या क्या लिख सकता हूं मैं? बेनिफिट में लिखूंगा डिस्ट्रैक्शन. ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शन सिंगल सेक्स स्कूल में नहीं होता है कि वहां पे अपोजिट सेक्स नहीं होगा, तो देयर इज अ लेस डिस्ट्रैक्शन. नेक्स्ट, नॉट टू मीट अपोजिट सेक्स. सो डिस्ट्रैक्शन कैसे नहीं होगा कि हम किसी दूसरे अपोजिट सेक्स से नहीं मिलते हैं, तो देयर इज अ लेस डिस्ट्रैक्शन. ठीक है ना. लेट्स जंप इनटू द अदर स्लाइड. सो लेट्स रीड. एक बार फिर से हम रीड करते हैं क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या कहते हैं? सम पीपल थिंक दैट स्टूडेंट इन द सिंगल sex school perform better in academics. So I am underlining the important keyword. While others believe that, or others, however, believe that mixed school provide children with a better social skill for their adult life. So discuss both the views and give your opinion. अगर यहाँ पे आपको ओपिनियन नहीं पूछा तो ओपिनियन नहीं देना आपको सीधा ऐसे में लिखना है कि we will this essay will discuss both the positive और we will discuss both the thoughts of both the views. ठीक है ना. इंट्रोडक्शन. तो आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है? तो मैंने पहले बता रखा है, इंट्रोडक्शन में आपको पैराफ्रेज करना है. पैराफ्रेज करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैराफ्रेज करना है. तो पैराफ्रेज करना है और आपके बाद उसको अपना ओपिनियन देना है. ठीक है ना, ओपिनियन देना है. बस यही दो स्टेटमेंट या यही दो लाइन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है किसी भी एसेज में. तो आपको पैराफ्रेज करना है और आपका ओपिनियन देना है. अगर ओपिनियन पूछा है तो ही ओपिनियन देना. ओके, तो ओपिनियन देना है. ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा. चलो मैं इरेज नहीं करता. ठीक है ना, तो ये जो ऑरेंज वर्ड है तो और ये ऑरेंज मैंने कर रखा है और ये मैंने ब्लू कर रखा है, तो आपको पता चलेगा किस लिए है.
ठीक है ना। तो द पैराग्राफ और द इंट्रोडक्शन इज, सो आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिख रखना है, इन द present age, whether single-sex school provides more benefit than a mixed school has sparked much more debate. It means this is a debatable topic. Okay. Some people, अब यहाँ पे एक opinion दे रखा है. Some people assert that school in a single sex, student in a single sex या फिर one gender school have a better academic achievement. Whereas यहाँ पे आप दूसरा opinion दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे आप दूसरा opinion दे रखा है. यहाँ पे एक ओपिनियन दे रखा था, अब यहाँ पे दूसरा ओपिनियन दे रखा है. Argued that the Miss School has offered student better social skill for the future. So future यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है, आप adult life की जगह यहाँ पे आप future लिख सकते हो, ठीक है. Personally, I am favoring the latter view. So so I am preferring the mixed school is a very important and it is a better for the life. तो मेरा जो ओपिनियन होगा mixed school. तो जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है ऑरेंज में, उसको आप अच्छे से लिख लीजिए अपने कॉपी में. इट इज यू कैन यूज टू अपना ओपिनियन देने के लिए आप अपने मॉक टेस्ट में दे सकते हो. तो इन द प्रेजेंट एज द सिंगल जेंडर स्कूल प्रोवाइड मोर बेनिफिट एंड देन द मिक्स स्कूल which has sparked the debate. So spark the debate is also good word. Some people assert that it is a good vocabulary or it is a good line. Academic achievement is a good vocabulary, so you can use academic achievement, whereas many other argued that it is a great linking word. ठीक है ना, it is a great linking word. Personally I am favoring the later word. It is a great linking word. So आपको ये अगर रिमेंबर होगा तो it's a great benefit. So आपको इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखना है. Now let's see paragraph number 1. So आपको paragraph number 1 कैसे लिखना है, body paragraph number 1 कैसे लिखना है. So this is a better view of paragraph number 1. तो आपको paragraph number 1 दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो. आपको more reason देने पड़ेंगे for writing a paragraph number 1, क्योंकि मैं इसमें mixed school के बारे में लिख रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी मैं reasons दूंगा कि mixed school has XYZ importance और बहुत सारी information है because मैं वहाँ पे वो link कर रहा हूँ, ठीक है ना. So, convincing argument can be made that a mixed school provide a better comprehensive learning environment for the children. To start with, so to start with is एक पहला reason हो जाएगा, ठीक है. To start with, student at a mixed school have a more chance to communicate with the member of an opposite sex. In other word is a good way to add your explanation, ठीक है ना. explanation में in other word लिखेंगे तो बहुत benefit होगा. In other word, children learn how to talk to other gender at early age, therefore their social skills would certainly be fostered is a great word. Moreover is the second reason. मैं यहाँ पे दूसरा reason दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे दूसरा reason दे रहा हूँ. Moreover, makes schools give student opportunity to deal with the conflict with the other gender. Yes, conflict deal करने के लिए helpful होता है. With strengthen student problem solving skill. Yes, for instance यहाँ पे हो गया example. आप for instance use करते हो example के लिए. When a boy has a conflict with a girl at a school, both of them learn how to cope, ठीक है. This lesson must be learned sooner or later. As a result, it is a benefit more if they can learn it sooner, ठीक है ना. लास्टली जो हो गया मेरा थर्ड रीजन हो गया, ठीक है ना. देख रहे हो आप मैंने कितने अच्छे रीजंस दिए हैं और 2-3 लाइन में मैंने एक्सप्लेन किया फटाफट, आपको कोई चीज कॉम्प्लेक्स नहीं करनी. लास्टली, मिक्स स्कूल प्रोवाइड स्टूडेंट विद द रियल वर्ल्ड सिनेरियो. आपको रियल लाइफ सिनेरियो प्रोवाइड होता है. सो इट इज अ ग्रेट वोकैबुलरी where both gender coexist is a great vocabulary. Specifically, students able to learn organic environment. Organic environment मतलब आपका जो real world scenario में जो environment होता है, surrounding होती है जिसमें आपको मेल फीमेल और बाकी जेंडर से डील करना पड़ता है. तो it is a great way to students are able to learn in an organic environment in which boys and girls must learn how to interact with each other. So these are the 3 reasons. मैंने 3 reasons के साथ explain किया है. So एक बार आप इसको जरूर read कीजिए pause करके. So मैं यहाँ पे कुछ linking word को discuss करता हूँ. Convincing argument can be made. Convincing argument can be made जो है बहुत ही अच्छा linking word है, ठीक है ना. मैंने यहाँ पे use किया है
टू स्टार्ट अ पैराग्राफ, ठीक है ना। आपको अगर आपके बहुत सारे रीजन हैं तो आपको एस लिखना है, ठीक है ना। एस यहाँ पे मैंने यूज किया है टू असर्ट मल्टीपल रीजन। आपके पास एक आध रीजन, एक ही रीजन है तो कन्विंसिंग आर्गुमेंट कैन बी मेड, तो आपको एक रीजन देना पड़ेगा, ठीक है ना। और टू स्टार्ट विथ is a great vocabulary. In another word is a great vocabulary to explain your idea, ठीक है। Therefore is a great vocabulary, ठीक है। Moreover is added, और in addition आप moreover की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं to give the second reason. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ ग्रेट वोकैबुलरी। मैंने यहाँ पे लिंकिंग वर्ड की जगह मेरे को ऑरेंज करना था, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ ग्रेट वोकैबुलरी। फॉर इंस्टेंस जो है इट्स अ वे ऑफ डीलिंग एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल करना है तो आपको फॉर इंस्टेंस जरूर लिखिए, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस इज अ ग्रेट वोकैबुलरी, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो लिंकिंग वर्ड टू एड एग्जाम्पल। नाउ एज अ रिजल्ट इज अ ग्रेट लिंकिंग वर्ड। लास्टली जो है वो ऐड किया है फॉर गिविंग अ थर्ड रीजन, ओके। रियल लाइफ सिनेरियो इज अ ग्रेट वोकैबुलरी, मैंने यहाँ पे ऑरेंज करना था। ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अ ग्रेट योर ग्रेट वोकैबुलरी, ठीक है ना। और स्पेसिफिकली इज अ ग्रेट linking words. So these are the some linking words and some vocabulary you can use in a real world scenario. तो मेरा मानना है कि आप ये जितने भी लिंकिंग वर्ड है अपने कॉपी या फिर पेन पेंसिल में आप बस कॉपी कर लीजिए। इट्स अ ग्रेट वे टू राइट और लर्न लिंकिंग वर्ड। नाउ हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, पैरा नंबर सेकंड हो गया। हम पैरा नंबर फर्स्ट हुआ, हम पैरा नंबर सेकंड में जाएंगे, बॉडी पैराग्राफ नंबर सेकंड। So let's discuss the other reasons for supporting a single sex schools. Admittedly, single sex schools have a fewer distraction. Yes, fewer distraction is a great word. The reason for that is a single school only has a boy or girl. देखो boy and girl यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि सिर्फ सिंगल सेक्स स्कूल सिर्फ बॉयज के लिए होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दोनों हो सकते हैं। Student would not be distracted by the member of the opposite sex at school, hence they can focus on their learning. Even so is a great vocabulary. Even so, these students still have access to other gender at after the school. So I am writing a good essay and I am explaining that also. देखो मैंने क्या लिखा है, मेरा आइडिया क्या है कि अगर जितने ज्यादा सिंगल सेक्स होंगे या सिंगल जेंडर होगा स्कूल में तो डिस्ट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। और दे कैन फोकस ऑन देयर लर्निंग, ओके। अब ये कैसे होगा? बिकॉज उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और वी आर इन एडोलेसेंट, काफ़ी एज होते हैं जो एडोलेसेंट होते हैं, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपोजिट सेक्स से, सो कम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि यार ये तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो नहीं है। पर मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा लाइन लिखा है कि इवन सो के बाद देखिए, दीज स्टूडेंट हैव एक्सेस टू अदर जेंडर आफ्टर स्कूल, which means in reality they must meet the other gender anyway. So after you're completing your education in the school, या फिर आपका जब क्लास खत्म होगा तो आप बाहर जाएंगे तो आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ही रहेंगे ज़्यादातर। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सोशल स्किल पे। However, consequently पे आप लिख सकते हो however the benefit of a single sex schools are limited. सिंगल सेक्स स्कूल के लिमिटेड बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आप सिंगल सेक्स के स्कूल की जगह पता है सिंगल जेंडर भी लिख सकते हो, तो आप जेंडर लिखोगे तो वो भी मान्य होगा, जेंडर, ठीक है। सो मैंने काफी अच्छे लिंकिंग वर्ड यूज किया। द रीजन फॉर दिस, इवन सो, consequently, adamantly, these are the some good linking words. Vocabulary is opposite sex, opposite sex is a great, quite limited is a great vocabulary, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने बोला आपको सिंगल सेक्स का सिंगल जेंडर आप यूज कर सकते हो। तो ये था पैरा नंबर 2। हम अब देखते हैं कंक्लूजन कैसे लिखना है। देखो कंक्लूजन हमेशा शुरू करना आप इन सम अप या फिर टू कंक्लूड से शुरू करना आप, ठीक है ना। आपको लिखना पड़ेगा टू कंक्लूड्स, आई थिंक यहाँ ये स्पेलिंग होती है, टू कंक्लूड लिख लेना, टू कंक्लूड
To conclude, that single sex schools have some advantage. Despite that, mixed school have a certainly support children in a much better way. Overall, I'm convinced that the student should get a mixed school. So I am writing my opinion. तो जैसे आपको आपने इंट्रोडक्शन लिखा है वैसे आपको कंक्लूजन लिखना है. कंक्लूजन में आपको ओपिनियन आना चाहिए, तो यहाँ पे ओपिनियन है इसका, वेरी गुड. और यहाँ पे मैंने दोनों की बात कर रखी है. मैंने यहाँ पे सिंगल सेक्स की बात कर रखी है कि इट इज हैव अ बेनिफिट, बट डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद भी I convinced that mixed school is a great benefit in a much better way. So these are the some these are the, so this is the conclusion. और आपको कुछ अच्छे linking words हैं to sum up. In sum up, I would conclude. So I would concede this is a great vocabulary. Despite that is a great linking word. Overall, I am convinced that is a great linking word. So इस तरीके के आपको linking word करने हैं. So these are the things you can write, और आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा. सो इट इज अ 9 बैंड ऐसे, ठीक है ना. ये जो है ऐसे वो 9 बैंड ऐसे है, ठीक है ना. 9 बैंड ऐसे है, ठीक है. सो लेट डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन. देखो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ऐसे को लिखने के लिए आइडिया जनरेशन. आपके आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट माने रखते हैं, ठीक है ना. आप विदाउट आइडियाज आप अच्छे एसेज नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना, मेरा मानना है. और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा गुड लिंकिंग वर्ड्स. लिंकिंग वर्ड बोलो या कनेक्टर बोलो, या फिर आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो. कनेक्टर, ठीक है ना. कनेक्टर आप बोलो या लिंकिंग वर्ड बोलो, आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है. और उसके बाद गुड फॉर्मेट, जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मेट बताया लिखने का, आपको वैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना. गुड फॉर्मेट में मैंने आई थिंक सबको डिस्कस कर रखा है, कैसे पैराफ्रेज करते हैं, पैराग्राफ नंबर 1 2 कैसे लिखते हैं, और कैसे आपको कंक्लूजन लिखना है. सो दीज आर द सम फॉर्मेट. सो आप इसको कॉपी कीजिए और लिंकिंग वर्ड्स आप अच्छे से देखिए, आपको अच्छा आ जाएगा. और उसके बाद आते हैं आपका प्रैक्टिस, ठीक है ना. ये 4 चीजें आपको करनी पड़ेगी अच्छे एसेज के लिए, ठीक है ना. और आपको जो सैंपल एसेज होते हैं ना, 9 बैंड के एसेज, 9 बैंड के एसेज जो होंगे ना, आप उसको रीड करो, ठीक है ना. रीड करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा. तो ये सब आपको पता है कहाँ से मिलेगा, आपको ये सारा चीजें आपको यहाँ से मिलेगा. दिस इज द राइटिंग टास्क 2 इन आइल्स एकेडमिक. आपको ये गाइड है, आपको ये डाउनलोड करना है अगर आप चाहते हैं 9 बैंड या 8 बैंड अपने एसेज में. और मिनिममली जो हम इंडियंस सोचते हैं कि 7 बैंड मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है. तो आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिए. इट इज़ अ ग्रेट बेनिफिट और इट विल डेफिनेटली हैव इम्पैक्टफुल ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है ना. इसको जरूर डाउनलोड कीजिए. अगर आपको ये नहीं करना है तो देर इज ऑल्सो ग्रेट ग्रेट मटेरियल, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. 8 बैंड आइल्स बिग बुक, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना. यहाँ से डाउनलोड कीजिए. इट विल कॉस्ट टू लेस देन मूवी टिकट, ठीक है ना. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना. सो मेरे को कमेंट करोगे तो आई विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल. सो दिस इज द ऐसे आप इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ पैरा नंबर 2, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ रिमेनिंग, ठीक है ना. So that's all, and bye bye and have a nice day. I also like my video, subscribe the channel, I will be very glad.